শুভ সকাল আমার মিষ্টি বন্ধু বান্ধবীরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সকলে খুবই ভালো আছো। ফ্রেন্ডস, সকালবেলা হয়ে গেছে, চলে এসেছি আবারও একটা নতুন ব্লগ নিয়ে, নতুন ভিডিও, নতুন সকাল। তো তোমরা আমার আগের ভিডিওতে দেখেছো ট্রেনে করে আমি এসেছি দিদির বাড়ি। দিদির বাড়ি নয়, সরি, দিদি যেখানে থাকে। তো দিদি তো অসুস্থ, দিদির কাছে আসতে হয়েছে এবং দিদির কাছে কাজ করতে হচ্ছে। দিদি অসুস্থ, করতে পারছে না, অনেক রকমের প্রবলেম আছে। তো আমি এসেছি দিদির কাছে, এবং দিদির কাছে এলে কি হয়েছে, দিদির কাছে গিয়ে শুধু কাজই করব বলো? একটু তো ঘুরতে যেতেই হবে। তো একটু ঘোরাঘুরি করব আমরা সকলে, আমি আর আমার বোন সবাই ঘুরবো। তো অনেক 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 রিকোয়েস্ট করার পরে দাদাভাইকে রাজি করিয়েছি যে আমাদেরকে একটু ঘুরতে নিয়ে যেতে। তো ফ্রেন্ডস, আমার দাদাভাই রাজি হয়েছে। অফিস আজকে অফ ডে, তো ওই জন্য সে আজকে আমাদেরকে নিয়ে ঘুরতে যাবে। দিদিকেও রিকোয়েস্ট করেছি, দিদি তুই চল প্লিজ, তো শরীর অসুস্থ, তোর মন ফ্রি হবে, তুই চল। তো দিদি যাবে না করছিল। তো দিদিকে রিকোয়েস্ট করে অনেক অনেক করে, আমি তো তোকে সবসময় বলি না দিদি তুই চল, একবার চল, আমি তো সবসময় আসি না বল, আমি তো এই প্রথমবার তোর কাছে এসেছি, তুই চল আমার সাথে সঙ্গে, তোর মনটা ফ্রি হবে। অনেক করে বলতে দিদি বেরিয়েছে, রেডি হয়েছে, তো দিদিও যাবে। তো ফ্রেন্ড, ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছি, ঘুম থেকে উঠেছিলাম 8টার দিকে, উঠে ব্রেকফাস্ট করেছি লুচি এবং আলুর তরকারি, সিমুইর পায়েস ব্রেকফাস্ট করেছি। ব্রেকফাস্ট করে এখন বাজে 11টা, বেরিয়ে চলে যাব ঘোরার জন্য। একটু লং ড্রাইভও হবে, ঘোরাও হবে, মনটাও ফ্রি হবে। সবসময় একঘেয়ে আমি বসে আছি বাড়িতে ভাল লাগছে না, সবসময় কাজ কাজ। তো দাদাভাইয়ের সঙ্গে যাব, দিদি আমি দাদাভাই সবাই পড়ে যাবে একসঙ্গে। তো ফ্রেন্ডস, বেশি বকবক হয়ে যাচ্ছে না, তো চলে যাব ঘোরার জন্য। চলো, রাস্তায় যা কিছু করব সবটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব এই ভিডিওর মাধ্যমে। আমি যতটা সম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করব, সঙ্গে থেকো। ফ্রেন্ডস, বেরিয়ে পড়েছি ঘুরতে যাওয়ার জন্য। তো আমি আর আমার বোন, দেখো বোনকে দেখো, বোন পুরো রেডি। তো বোন রেডি হয়ে গেছে, বোনের সঙ্গে যাচ্ছি। বোনের আজকে সাজটা দেখো, বোনের সাজটা দেখো। তো এটা হচ্ছে বোনের সাজ। আমি এখন কোয়ার্টার থেকে বেরোচ্ছি, দিদির কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে আছি। তারা সব পেছনে আসছে, আর ছোটো ছোটো বাচ্চারা খেলা করছে, তোমরা দেখছো। এবং দেখো এখানকার জায়গাটা কত সুন্দর। এখানে আরও একটা স্পেশাল জিনিস তোমাদেরকে রাতের দিকে ওটা দেখাবো, ওটা এখন দেখতে পাবে না, রাতের দিকে দেখতে পাবে। প্রচুর টিয়া পাখি এখানে, মানে টিয়া পাখি দেখলে তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে, এত পরিমাণ টিয়া পাখি। প্রচুর টিয়া পাখি, প্রচুর ময়ূর, প্রচুর মানে আমরা ভাবছি এত টিয়া আমি কি করে নিয়ে যাব। মানে খুব খুব ভালো লাগছে দেখতে, খুব অসাধারণ জায়গা। তো ফ্রেন্ডস, চলো সঙ্গে থেকো। আমরা চলে এসেছি পার্কিং প্লেসে। তো ফাইনালি পৌঁছে গেছি। গাড়িটাকে তো পার্কিং করতে হবে, পার্কিং করে আমরা চলে যাব। তো তোমরা আগে দেখেছো যে কত সুন্দর পাথরের স্তূপ এবং কত বড় একটা গেট, সবটাই তোমাদেরকে দেখিয়েছি। এবার আমরা এখানে গাড়িটাকে পার্কিং করে আরও 3-4 কিলোমিটার ডিস্টেন্সে যেতে হবে। তো আমি আর বোন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, তোমরা দেখছো। এবং আশেপাশে দেখো কত দোকান, এখানে কেউ কেনাকাটাও করতে পারো। তো আমরা পার্কিং প্লেসে পার্কিং করে একটা গাইড নেব, গাইড নিয়ে চলে যাব ফতেপুর সিক্রি। তো একটা গাইডকে বলা হয়েছে, গাইড নেবে বলেছে 500 টাকা। তো 500 টাকা নিয়ে একটা গাইড নিয়েছি, গাইড নিয়ে চলে যাচ্ছি। দেখো অনেক বিদেশিরাও এসছে, কারণ বিদেশিরাও আমাদের ইন্ডিয়াকে ভালোবেসে দেখতে এসছে। তো গাইড সামনে যাচ্ছে, তোমরা দেখছো। এবার ওই পাশে দেখো একটা গাড়ি আছে সাদা কালারের, তো ওই গাড়িটা আমরা উঠে যাব। ওই গাড়িতে করে আমরা ফতেপুর সিক্রি যাব, কারণ ওখানে প্রাইভেট কার অ্যালাউ নেই, ওই জন্য ওদের গাইডরাই গাড়িতে নিয়ে যায়।
তো আমরা ফাইনালি পৌঁছে গিয়েছি। পৌঁছে গিয়ে আমরা টিকিট কাউন্টারের সামনে এসেছি টিকিটটা করার জন্য। তো টিকিট করে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করছি। ভেতরে দেখো, তো এই যে বাগানটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এখানে আকবরের ছেলে খেলা করতো, এই বাগানটাতেই খেলা করতো। তো আমরা আরও ভেতরের দিকে যাব, ভেতরের দিকে গিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো। এবং দেখো পাথরের কত সুন্দরভাবে কাজ করা আছে, তো তোমাদেরকে সেটাও দেখাচ্ছি। পুরো ঘরটা কিন্তু পাথরের তৈরি। তো এটা হচ্ছে আকবরের কেল্লা, আকবর এখানে থাকতেন। এই যে ঘরটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এই ঘরটা হচ্ছে আকবরের মিটিং হল। সেটা তোমাদেরকে ভেতরে প্রবেশ করে তোমাদেরকে দেখাবো এবং গাইডও কিছু কিছু বলবে। তো চলো ফ্রেন্ডস, দেখে নাও ভেতরটার কাজকর্ম, ভেতরটা কত সুন্দরভাবে কাজ করা এবং এর কোথায় মিটিংটা হতো সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো। अकबर अपने जो 9 मिनिस्टर हुआ करते थे, 9 जेम्स जिनको बोला जाता था, उनके साथ में पर्सनल और इम्पोर्टेंट मैटर्स डिस्कस किया करते थे। नवरत्न सभागृह भी इसको बोला जाता है, या फिर दीवाने खास या प्राइवेट मीटिंग हॉल। चलिए अंदर से देखिए। পাথর দিয়ে কেমন বানানো, পাথর কেটে কেটে বানিয়েছে না? तो दिन के माने रिलीजन बुलाइए उनको, बुलाइए। हाँ दीदी, उनको बाद में खींच देंगे, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ 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 दीदी आए। मैटर्स डिस्कस हुआ करते थे, या फिर जो मीटिंग हुआ करती थी वो नीचे बैठ के नहीं हुआ करती थी, वो ऊपर बैठा करते थे। ऊपर बैठा मतलब? ऊपर जो बालकनीज आप देख रहे हैं, इनमें उनके जो मिनिस्टर हुआ करते थे, 9 मिनिस्टर रास्ते हुआ करते थे, वो भी मैं बताऊँगा अभी आपको। उनमें उनके मिनिस्टर बैठा करते थे, बीच में सही से अकबर बैठा करते थे। अच्छा, बीच में हाँ जी। और ये जो पिलर देख रहे हैं आप, ये स्टोन का बना हुआ है, सिंगल पीस, इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है। और इस पर उस ज़माने में उन्होंने सभी धर्मों का कार्विंग कराया था, क्योंकि उन्होंने एक धर्म चलाया था यहाँ से 1582 में दीन इलाही, उसकी शुरुआत यहीं से की गई थी। उसमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को लेकर उसको शुरू किया था, और यही मैसेज इस पर जो कार्विंग करा के उन्होंने दिया था कि सभी धर्मों के सिंबल इस पर बनवाए थे, उन्होंने कार्विंग कराए थे उस ज़माने में। ऊपर जो देख रहे हैं वो जैन टेम्पल्स का डिज़ाइन है, नीचे बौद्धिज़्म का, फिर एग्जैक्ट पर्सियन का, फ्लावर्स हिंदुज़म का, और मॉस्क इस्लाम धर्म का। तो सारे धर्मों का डिज़ाइन उन्होंने उस ज़माने में कार्विंग कराया था, क्योंकि वो सभी धर्मों में अपना विश्वास रखते थे। वो किसी एक पार्टिकुलर धर्म को नहीं मानते थे, बेशक वो इस्लाम धर्म को मानते थे, बट सारे धर्मों में उनका विश्वास हुआ करता था। क्लियर? लाइए मैं फ़ोटो निकाल देता हूँ आपका। धुंधला सा फोटो हुआ करता था उस ज़माने में पेपर मनी नहीं हुआ करता था, टकसाल के सिक्के हुआ करते थे। उन सिक्कों को रखने के लिए अलग अलग जगह उन्होंने बनवाई थी। तो यहाँ पे आगे आइए, यहाँ पे उनका ख़जाना रखा जाता था। बादशाह अकबर काफ़ी बड़े एम्पायर के मालिक थे, और उनका ख़जाना भी काफ़ी बड़ा और कई जगह पे हुआ करता था, इसीलिए ये पूरा बिल्डिंग उनका ख़जाना रखने के तौर पे यूज़ किया जाता था। ये जो छतरी देख रहे हैं ना, यहाँ पे उनके एक एस्ट्रोलॉजर बैठा करते थे, पंडित पुरुषोत्तम दास, यहाँ पे बैठ के वो ज्योतिष किया करते थे। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं 5 मंजिला इमारत, इसको 5 पंचमहल उस ज़माने में कहा जाता था, या फिर विंड हाउस, हवा महल। और सबसे ऊपर वाले माले पर बैठ के बादशाह अकबर अपनी बेगम के साथ हवा खाया करता था। अच्छा, इसके ऊपर बैठ के हवा खाते थे? सबसे ऊपर वाले ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं जहाँ पे आप खड़े हैं, ये रॉयल फैमिली के बच्चों के लिए स्कूल हुआ करता था। नीचे स्कूल था, ऊपर लाइब्रेरी हुआ करती थी। नीचे स्कूल था, नीचे स्कूल था, ऊपर लाइब्रेरी। ये हवा पहले रास्ते ऊपर जाने के थे, बट बंद कर दिए, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो। जो फ्लोर पे देख रहे हैं आप, प्रोसेस एंड बॉक्सेस, ये पूरा एक गेम बना हुआ है। तो देखिए चौसर का गेम, ब्लैक चेस बोर्ड, और बीच में एक सीट है जहाँ पे कोई राजा और रानी या फिर खेला करते थे। यहाँ पे गोटियों की जगह पे दासियाँ खड़ी होती थी, अलग अलग रंग के कपड़े पहन कर, और वो चाल के हिसाब से डांस करते हुए नृत्य करते। लाइए फोटो, फ़ोन दे दीजिए, फोटो अच्छा आता है, मैं फोटो निकाल देता हूँ। सबर करो। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रहे हैं, ये उस ज़माने में सुनहरा महल के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे मरियम रहा करती थी, मरियम जो कि उनकी क्रिश्चियन वाइफ थी और गोवा की रहने वाली थी।
इस पे उस ज़माने में वॉल पेंटिंग्स हुआ करती थी, इसका मेन अट्रैक्शन था पेंटिंग सारी खत्म हो चुकी है क्योंकि ये 450 साल का वक्त हो चुका है। कहीं कहीं आप कलर्स देख सकते हैं बट सारी पेंटिंग्स खत्म हो चुकी है, रेड सैंड स्टोन ही देखने को मिलेगा। ये जो इमारत देख रहे हैं पीछे, अभी आपने पूछा, ये किचन है महारानी जोधाबाई जो कि वेजिटेरियन थी, राजपूत हिंदू थी, ये उनके लिए बादशाह अकबर ने बनवाया था। हाँ ये क्या किचन उनके महारानी जोधाबाई की किचन है। महारानी जोधाबाई राजपूत हिंदू थी और प्योर वेजिटेरियन। यहाँ पे उनके लिए सेपरेट खाना बनता था, ये उनके लिए सेपरेट किचन थी जोधाबाई किचन भाई। और इसका पूरा डिजाइन से बना अलग डिजाइन का खाना नहीं है अंदर उसमें, खाना तो खा गए वो लोग साथ में। चाहिए যোধা আকবর। আমরা এখন যেই বিল্ডিংটায় এসেছি সেটা হচ্ছে বাদশাহ আকবরের পত্নী যোধাবাইয়ের ঠাকুর ঘর। এখানে রাধা মাধবের পুজো করতো যোধাবাই নিজের হাতে, কারণ উনি ছিলেন হিন্দু। উনি যখন বাদশাহ আকবরকে বিয়ে করেন 3টে শর্ত রেখে বিয়ে করেছিলেন, যে উনি ওনার ধর্ম ত্যাগ করবে না এবং ওনার জন্য আলাদা করে রান্নাঘর বানিয়ে দিতে হবে এবং ওনার জন্য আলাদা করে ঠাকুরঘর বানিয়ে দিতে হবে। বাদশাহ আকবর এতে রাজি হয়েছিল, তার জন্য ওনাকে ঠাকুরঘর বানিয়ে দিয়েছে এবং আগে তোমরা দেখেছো রান্নাঘর বানিয়ে দিয়েছে। शादी जब हुई थी बादशाह अकबर से तो उन्होंने 2 शर्त रखी थी। पहली शर्त ये रखी थी कि वो अपना रिलीजन चेंज नहीं करेंगे और दूसरी शर्त ये रखी थी कि वो अपने लिए वेजिटेरियन किचन बनवाएंगी। तो बादशाह अकबर ने उनकी दोनों शर्तों को माना था। पहली जो किचन उनकी बनी थी वेजिटेरियन किचन, बाहर आपने देखा वो बनवाई थी। उसके बाद में उनके पैलेस में मंदिर भी बनवाया था। ये पूरा पैलेस महारानी जोधाबाई का था। आपने देखा हो ना, सुनिए ना, पूरी बात खत्म होने के बाद में अगर कोई मिस होता है तब पूछिएगा, ठीक है। तो ये पूरा पैलेस महारानी जोधाबाई के लिए बादशाह अकबर ने बनवाया था क्योंकि वो उनकी फेवरेट क्वीन थी और जो बेटा मिला था उनको वो महारानी जोधाबाई से मिला था, इसीलिए उनको हेड क्वीन का दर्जा उस ज़माने में उनको दिया था, या फिर उनको मलका हिंदुस्तान के नाम से वो संबोधित भी किया करते थे। यहाँ पे उनके लिए 2 बेडरूम उन्होंने बनवाए थे। सामने जो देख रहे हैं नीली छत जिसकी है, ये उनका समर बेडरूम हुआ करता था। इसके अपोजिट दूसरा इधर देखिए, ये विंटर बेडरूम था। ये समर बेडरूम इसलिए था क्योंकि इसके पीछे दीवारें नहीं थी, जालियाँ लगी हुई हैं और उस ज़माने में एक आर्टिफिशियल झील हुआ करती थी। उस झील से ठंडी हवाएं इसके अंदर आया करती थी और ये ठंडा रहा करता था। यहाँ पे वो गर्मियों में आराम किया करते थे। इसके अपोजिट वाला देखेंगे, ये पीछे से पैक है और इसमें कोई हवा आने का साधन नहीं है और सूर्य की रोशनी सबसे पहले इसी पे पड़ती है और ज़्यादा समय तक वो यहीं पे रहता है। तो ये पूरा गर्म रहा करता था। इसका मेटल भी इस तरह का है कि जल्दी धूप के संपर्क में आने से वो गर्म हो जाता है। तो ये गर्म रहा करता था, वो ठंडा रहा करता था। ये चारों तरफ डॉम देख रहे हैं आप, चारों तरफ डॉम, ये वॉचिंग टावर्स हुआ करते थे बाहर का नज़ारा देखने के लिए। महारानी जोधाबाई जिधर का नज़ारा देखना चाहती थी उधर देख सकती थी। ये जो छतरीज देख रहे हैं, इनमें सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुआ करते थे। सिक्योरिटी गार्ड नो मेल नो फीमेल किन्नर हुआ करते थे क्योंकि ये पूरा लेडीज़ हरम हुआ करता था। क्योंकि महारानी जोधाबाई अपनी 51 दासियों के साथ में यहाँ पर रहा करती थी, जो उनके पिताजी ने उनको गिफ्ट में उनकी शादी के समय पर दी थी। यानी कि दासियाँ देने की प्रथा उस ज़माने में हुआ करती थी उनकी सेवाओं के लिए। यहाँ पे जो छोटे छोटे कमरे जो देख रहे हैं, इनमें उनकी दासियाँ रहा करती थी और ऊपर महारानी जोधाबाई रहा करती थी। तो जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे वो किन्नर हुआ करते थे, नो मेल नो फीमेल। सामने जो पॉन्ड देख रहे हैं बिल्कुल बीच में, यहाँ पे तुलसी का प्लांट हुआ करता था जिसकी पूजा किया करती थी महारानी जोधाबाई। जल चढ़ाने के बाद में सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं वहाँ पे भगवान राधा कृष्ण का मतलब मंदिर हुआ करता था। राधा कृष्ण जिनकी मूर्तियाँ हुआ करती थी, जो कि वो अपने मायके से अपने साथ लाई थी और उनको यहाँ पे स्थापित उन्होंने किया था। समझ रहे ना, ये उनका मंदिर है, महारानी जोधाबाई का मंदिर, जो कि उन्होंने शर्त के अनुसार बनवाया था। क्लियर सारा पॉइंट? और कहीं आपको कुछ पूछना है तो बताइए। এটা হচ্ছে তোমরা যেটা দেখছো বেবি কেয়ার রুম, বেবি কেয়ার অ্যান্ড ফিডিং রুম লেখা আছে দেখছো। তো এখানে বাচ্চাদেরকে যত্ন নেওয়া হতো এবং বাচ্চাদেরকে ফিডিং করানো হতো এই রুমটাতে। তো ভিডিওটা এই পর্যন্ত, ওয়ানের ভিডিও এই পর্যন্ত তোমরা দেখলে, বেশি করতে গেলে অনেকটা বড় হয়ে যাবে ভিডিও। তো ফ্রেন্ডস, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে, কমেন্ট করবে, সাবস্ক্রাইব করবে। প্রণমিতা ব্লগ চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, প্রণমিতা ব্লগ চ্যানেলের সঙ্গে থাকবে। টাটা।